Very good evening to all of you. Good evening, sir. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. जी Okay, सर। okay. So let's start a class. What were discussed in the last class, Mohsin? Please. Anyone, please? Sir, we have discussed liberal principle, Gandhian principle, wherein we lastly discussed UCC 47 and the two articles which were left, 48 and 49, I guess. Okay, No, not 48. 48 was done. 48, 48A was done, and thereafter 50 and 51 was left, okay. and 49. So I think in the last class we had classified the DPSP on the basis of some principles. What were the principle? So socialistic principle, Gandhian principle, and liberal principle. Okay. So आई थिंक हमें लगता है कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिए और क्या डिस्कस किया हमने Gandhian Gandhian principle. principle. गांधीयन प्रिंसिपल ओके आफ्टर दैट अब बात आती है लिबरलिस्टिक प्रिंसिपल की जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रोविजंस डिस्कस किए थे पहले तो हमें ये बताइए कि लिबरलिस्टिक जो प्रिंसिपल है व्हाट आर द आर्टिकल्स बेस्ड ऑन द लिबरलिस्टिक प्रिंसिपल कैसे कौन से आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी में व्हाट आर द डायरेक्टिव्स विच आर बेस्ड ऑन द लिबरलिस्टिक प्रिंसिपल्स So Article 44, 45, 48, 48A, 49, 50 and 51. ओके तो इसमें से हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में 44 और 45 हमने डिस्कस कर लिया था और 48 48 ए भी डिस्कस किया है आज जो हम लोगों को डिस्कस करना था दैट इज़ अ आर्टिकल 50 Yes, sir. ओके सो एनीवन प्लीज रीड आर्टिकल 50 कोई भी एक बार रीड करेगा आर्टिकल 50 को विच टाइप ऑफ डायरेक्टिव गिवन over the state that these directives should be included when they are framing any policy which type of directive is there please एक बार इसको रीड करेंगे उसके बाद हम बात करते हैं Sir, separation of judiciary from executive. The state shall take step to separate the judiciary from the executive in the public services of the state. okay so I think we can infer one principle that is a separation of power that is a separation of power between the judiciary and executive generally India is following a liberal separation of power, not in a strict way which is given by a Montesquieu. Are you getting my point? Who has given the principle of separation of power? Montesquieu. 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 But India is following the liberal view of separation of power because legislative and legislature and judiciary, executive, there are lot of power which are overlapping. कुछ ऐसे पावर्स हैं जैसे अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की तो दे आर एक्सरसाइजिंग एग्जीक्यूटिव पावर लेजिस्लेटिव पावर एंड जुडिशियल पावर ऑल्सो जुडिशियल पावर इन अ सेंस judicial power in a sense what are the articles where executive uses the judicial power pardoning power and Audit. ordinance making power that is a legislative power and एक प्रोविज़न है शायद आप लोगों को याद होगा कि अगर कोई बात आती है वो हाई कोर्ट के जजेस की एज को लेकर के या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज को लेकर के तो हु विल डिसाइड दिस मैटर Sir, एज तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से दे रखा है. लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है एज से रिलेटेड शशांक
if there is any dispute relating to the age of the High Court judge or a Supreme Court judge, then whose decision shall be final? So it depends, sir, because if the constitution get amended, then the legislature. No, no, it is written. It is written somewhere. Yes. In a constitution, it is provided. It is provided in the constitution. Yes, Abha? Is it president, sir? Yes, yes. Decision of the president shall be final, and there is one more provision जिसकी अगर बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ आप लोगों को शायद याद होगा. If there is a Yes, sir. if there is a defect in member of parliament, कोई डिफेक्शन है, whose decision shall be final? Whose decision shall be final? सर पहले तो अगर स्पीकर अगर ही होगी. अगर टेंथ शेड्यूल का अगर कोई प्रोविजन है तो स्पीकर, और अगर बाकी कहीं पर है अगर तो किसका होगा? प्रेसिडेंट. सर सुप्रीम कोर्ट. नो नो, प्रेसिडेंट. यहां पर भी वही चीज दी गई है कि एक जगह पर क्या है कि जो 10th शेड्यूल बाद में जोड़ा गया है एंटी डिफेक्शन लॉ का, जहां पर स्पीकर होगा वो फाइनली डिसाइड करेगा, हिज डिसीजन विल बी फाइनल. ओके. एंड एक जगह जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन और बाकी चीज़ों के लिए डिफेक्शन अगर कहीं है तो प्रेसिडेंट शैल डिसाइड, द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी फाइनल. आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे. लेकिन जो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 50 की, तो आर्टिकल 50 से वी कैन ड्रॉ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन अ जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव. एंड जनरली दिस सेपरेशन ऑफ पावर which is applicable in India, that is a liberal separation of power, not a strict separation of power. And generally all three organs will exercise that power within their limits, but they may also exercise the power of other organ in some special circumstances. कुछ ऐसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं जब जुडिशरी क्या करेगी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेगी और साथ में लेजिस्लेटिव वर्क भी करती है, जैसे रूल मेकिंग पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अंडर विच आर्टिकल इट इज गिवन? Abha, the rule making power of the Supreme Court, it is a kind of legislative power. Am I audible? Sasan, Manya, Yes, sir. under which article rule making power of Supreme Court is given? So rule making. Yes. Article 145. Article 145 of the Constitution provides the 140. rule making power of Supreme Court. And अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की, in what circumstances they exercise the judicial power, कोई एक बताएगा मुझे इलस्ट्रेशन जहां पर वो जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करते हैं? शशांक, सर आप ये पूछ रहे हैं कि लेजिस्लेचर जुडिशियल पावर कब एक्सरसाइज करता है? हाँ जी. सृष्टि, एक केस का नाम मैं बताऊं और आप लोगों को शायद याद आ जाए तो, केशव सिंह वर्सेस स्टेट, केशव सिंह वर्सेस यस सर. शायद यूनियन ऑफ इंडिया तो नहीं होगा, आई थिंक स्टेट नहीं ऑफ सर, वो स्टेट ऑफ, रेफरेंस वाला हाँ, केस इन था, रेफरेंस ऑफ इन केशव इन सिंह. रेफरेंस ऑफ केशव सिंह, ये सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दिया था इसके ऊपर. तो ये क्या था मैटर? सर कंटेम्प्ट ऑफ वो था लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट्री प्रिविलेज. पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इन द हैंड ऑफ, किसके हाथ में है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो अगर कोई कंटेम्प्ट करता है, अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का अगर कोई कंटेम्प्ट करता है अगर वहां पर, देन लेजिस्लेचर हैज पावर टू पनिश दैट पर्सन. एंड ऐसा ही हुआ था किसके साथ? केशव सिंह, जो कि उनके ऊपर कुछ पॉम्पलेट वगैरह छापने का कुछ काम था, उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिससे क्या हुआ, उनके ऊपर कंटेम्प्ट किया गया एंड he had been sent to jail and he approached to the Allahabad High Court for the bail and High Court has allowed the bail. क्या किया?
इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास अप्रोच किया और उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया और बेल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया। एंड आफ्टर दिस बेल द पार्लियामेंट्री कमेटी issues the warrant against 2 judges of High Court Allahabad. Whether they can issue warrant, whether High Court has jurisdiction to give bail in this matter, contempt by punishment by the legislature. तो ये जो क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन वॉज referred to the Supreme Court for the this question was referred to the Supreme Court by the President कि इसमें क्या होना चाहिए। चलिए इसके बारे में हम बात 105 में भी करेंगे आगे। और यहाँ पर हमारा जो कहने का मतलब है क्या कि these 3 organs, legislature, executive and judiciary, they have generally they exercise their own power which is given under the constitution, but and sometimes they overlap on each other, and there are chances of bypassing the power of other. क्या होता है, किसी दूसरे के पावर को बाईपास करने के चांसेस होते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या चीज़ है कि वी आर फॉलोइंग द लिबरल separation of power, not a strict separation of power. The concept of separation of power that was propounded by the Montesquieu, he has given us some specific ingredient of separation of power. एंड यहाँ पर हमारी जो बात है कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी क्या है, एक बार रीड करेंगे प्लीज, 50 को रीड करिएगा। क्या स्टेट को क्या ऑब्लिगेशन है, क्या करने के लिए बात की गई है यहाँ पर अंडर आर्टिकल 50। The state shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state. Okay, it means it will be the responsibility of the state that they will create the integrated judiciary outside the hierarchy of the executive. वैसे इसका थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बता देता हूँ कि बिफोर इंडिपेंडेंस क्रिमिनल मजिस्ट्रेसी इज हेल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब जो क्रिमिनल मजिस्ट्रेसी थी वो टोटली हेल्ड होती थी, किससे पोस्ट होल्ड की जाती थी और कौन करता था उसके लिए न्याय, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका हेड हुआ करता था। लेकिन उससे क्या होते थे, देयर आर चांसेस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, देयर आर चांसेस ऑफ अनरीजनेबलनेस, देयर आर चांसेस ऑफ मॉल प्रैक्टिसेस, बायसनेस, जो भी ग्राउंड आप रख सकते हैं जुडिशियल रिव्यू का, वो सारे ग्राउंड्स वहाँ पर होने के चांसेस रहते थे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इसके ऊपर चर्चा हुई और कहा गया कि न्यायपालिका को कैसा होना चाहिए, देयर शुड बी इंडिपेंडेंट जुडिशरी and that must be integrated judiciary. Integrated means there must be hierarchy and hierarchy from higher to low level. Yes शशांक, हाँ बताइए। सर आर्टिकल 15 के अंदर जो सेपरेशन की बात की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन की बात तो नहीं की जा रही है जो मैं समझ पा रहा हूँ। ये सेपरेशन की जा रही है कि आने वाले समय में स्टेट जो लॉज बनाता है या जो भी एक्शन करता है, कोई भी अथॉरिटी बनाता है, तो उसमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को एक्चुअली शशांक क्या है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर उसको इन्फ्लुएंस लेते हैं ऑब्वियसली। हाँ, यस, दैट इज नॉट गिवन इन एक्सप्रेसली, इट इज नॉट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, इट इज अ रूल ऑफ लॉ। यू आर इन्फरिंग दीज प्रिंसिपल्स एंड these principles are impliedly codified. Article 14 रूल ऑफ लॉ है, ओके, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 है, ठीक है, हम इन्फर करते हैं सिमिलर प्रोविजन हैज बीन गिवन, सिमिलर पावर हैज बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कोर्ट कैन एक्सरसाइज दिस पावर्स इन द नेचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ, इन द नेचर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, इन द नेचर ऑफ द रिट्स, इन द नेचर ऑफ। सो शशांक ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिक किया, बाकी आप कर पाए ना कर पाए मुझे नहीं मतलब है, लेकिन इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट दैट दे शुड टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, इसको एग्जीक्यूटिव से एकदम अलग किया जाए। एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात की गई, हायरार्की फ्रॉम सुपीरियर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट, एक हायरार्की में एक सिंगल ऑर्गन रहेंगे। देयर शैल नॉट बी कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव ओवर द अपॉइंटमेंट, ओवर द ट्रांसफर, ओवर द वर्किंग, over the conduct of the business of the court. Are you getting my point, Shashank? And this provision is based on the
basic structure, that is the independence of judiciary, that is the basic structure which was already held in many cases by the Honorable Supreme Court. Are you getting my point, शशांक? Yes, sir. हाँ, अब बात आती है कि what are the constitutional provision which separates the judiciary from the executive? What are the constitutional provision? और भी बहुत सारे constitutional provisions हैं इस independence of judiciary के लिए, तो आप बता सकते हैं कौन कौन से ऐसे provisions हैं which separate the judiciary from the executive. The first provision that is given in DPSP, that is a Article 50. Manya, first provision, Yes, sir. that is Article 50. Article 50, and another provision, Article 121 and 211. Anyone knows about these articles? Srishti, 121 and 211. देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अब है, ये आर्टिकल्स आपको टिप पर होने चाहिए, समझ रहे हैं आप? मतलब कि यहीं पर इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल 50, इसके साथ के जो इंसिडेंटल प्रोविजंस हैं ये सारे प्री में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, 121 में क्या दिया है या फिर क्या है उसके अंदर, वो किस सेक्शन आर्टिकल में दिया गया है। तो 121 to 11 ये कुछ ऐसे जो पेयर्स में आर्टिकल्स हैं, जैसे मैंने बात की थी 123, 213, देखा था आपने, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। यस, इसी तरीके से जो प्रोविजन डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट प्रोविजन दैट इज आर्टिकल 50. आर्टिकल 50 इज गिवन डीपीएसपी, एंड डीपीएसपी में क्या प्रोवाइड, स्टेट शैल टेक स्टेप्स to separate judiciary from the executive. This is a one provision, but there are also many provisions. कुछ provisions हैं जिनसे आपको पता लगेगा अच्छा ये बात कर रहा है जुडिशरी को सेपरेट किया जाए एग्जीक्यूटिव से। यस प्लीज। 121 आर्टिकल 121 क्या कह रहा है सस्टी? सर 121 कहता है कि अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उसमें जजेस के बिहेवियर के बारे में आप नहीं डिस्कस कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? जजेस के कंडक्ट और बिहेवियर का डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं होगा। कंडक्ट ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के, हाँ, कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। हाई कोर्ट का अगर जज है तो स्टेट लेजिस्लेचर में उसका डिस्कशन नहीं किया जाए कंडक्ट का, कौन सा जजमेंट कैसा दिया उसने, किस तरीके का जजमेंट दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड 211 में क्या है? सर सिमिलर प्रोविजन है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। मीन्स द कंडक्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस शुड नॉट बी डिस्कस। तो ये किस लिए दिया गया है प्रोविजन? दे आर सेपरेटिंग द पावर, इनका क्लैश ना हो, इंडिपेंडेंस रहे। क्यों शशांक? यस सर। Yes, sir. शशांक, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्लैश की बात कहाँ हो रही है? ये तो बस कह रहा है कि आप डिस्कस नहीं कर सकते उनके डिसीजंस के बारे में इन द पार्लियामेंट। शशांक, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए और पार्लियामेंट में डिस्कशन होने लगे उस जजमेंट पे, तो ये क्लैश ही तो है। मतलब आप मेरी बात को मानते नहीं हैं। बताइए शशांक, जो हमने कहा है, मतलब मैं मानता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, और इसके ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, तो इसका मतलब मेरे डिसीजन की वैल्यू नहीं है ना। सिर्फ कंडक्ट ऑफ जजेस की बात कर रहा है। कंडक्ट ऑफ जजेस का मतलब क्या है? इफ यू आर गिविंग एनी जजमेंट and then you are discussing in the parliament that this judge has given judgment in the favor of that party. Are you getting my point? Conduct क्या है? What is the conduct? Conduct क्या है? चलने फिरने का कंडक्ट शशांक नहीं, आने जाने का कंडक्ट नहीं, खाने पीने का कंडक्ट नहीं। सस्ती, हाँ बताइए। सर मतलब इसका यही मतलब है कि आप जजेस के बारे में ऐसे कोई पर्सनल मतलब ओपिनियन नहीं रख सकते हैं। आप उनके जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। जजमेंट को रिव्यू, सस्ती, जजमेंट को रिव्यू करने का मतलब क्या है? जजमेंट को बीच में रख करके उसको ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं इस जज ने ये गलत डिसीजन दिया है, इस जज ने ये गलत डिसीजन दिया है, ये जज इसके फेवर की बात करता है क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ। कैन नॉट डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। शशांक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए ही तो प्रोविजन है ये, कि हमारे बारे में आप वहां पर डिस्कस ना करें और हम उससे एकदम अलग हैं, हमारा पॉलिटिकल कोई रिलेशन नहीं है। शशांक, हाँ, ये चीज है सर, ये समझ में Are you getting my point? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के कारण ये प्रोविजन। और एक चीज और है शशांक, जब आपने देखा था कि केशव सिंह के बारे में जब थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का कितना बड़ा क्लैश था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इफिशिएंटली उसको सॉल्व किया था। ठीक है, और दोनों लोगों को कहा था कि आप लोग कहाँ रहे, नो वन इज अ सुप्रीम, कोई सुप्रीम नहीं है, दोनों लोग विद इन पावर आप अपने काम करिए। ठीक है, और कोई ये नहीं कहा था कि आपने गलत किया या सही किया, ये भी नहीं कहा था। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसे ही सेम पावर दैट इज गिवन इन हाई कोर्ट, सॉरी दैट इज गिवन इन 211, कि हाई कोर्ट जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डिस्कस नहीं किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर में। इसके बाद अगर हम बात करें तो आर्टिकल 122 एंड 212 क्या कहता है? आर्टिकल 122 एंड 212 That not to inquire into proceedings of parliament। हाँ सृष्टि, क्या है इसका मतलब? सर सेम चीज़ यहाँ जुडिशरी के ऊपर भी एप्लीकेबल है कि वो कोर्ट्स रूम में बैठ करके पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की इरेगुलरिटी को नहीं चेक कर सकते। शशांक, आई थिंक अब आपको ये समझ आया होगा कि ये सेपरेशन ऑफ पावर क्यों किया गया, कि ये पावर आपको नहीं है और ये पावर आपको नहीं। शशांक, जी यस आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मान्या, मान्या, यस सर। इसका मतलब क्या है? सर सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर की 2-3 जगह कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई जुडिशरी है। एंड सबसे पहले एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, सॉरी सर, हाँ, एग्जीक्यूटिव एंड हाँ, जुडिशरी। बिल्कुल। आर्टिकल तो 50 में आर्टिकल 211 एंड 121। बिल्कुल, तो यहाँ पर सॉरी मान्या, आपने सही कहा था, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के लिए यहाँ पर कहा गया, लेकिन 50 में डायरेक्टली क्या बोला गया? ये इंडिपेंडेंस के हम प्रोविजन की बात कर रहे थे, जो बात कर रहे थे हम किसकी बात कर रहे थे, कहाँ पर प्रोविजन है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से रिलेटेड। तो हमने देखा 50 में किससे अलग कर दिया गया? क्यों? executive एग्जीक्यूटिव से। और उसके बाद लेजिस्लेचर से कहाँ पर अलग किया गया? 121 and 211। 211 211। हाँ, 211 करेक्ट। तो कहा कि 122 एंड 212 वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेशन कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इन द कोर्ट। किसी भी तरीके की उसकी जो प्रोसीडिंग है और कोई वैलिडिटी है अगर किसी लॉ की, तो वो वहां पर क्या नहीं की जाएगी? क्वेश्चन नहीं की जाएगी कि आप लॉ नहीं बना सकते, ये बनाने का तरीका नहीं आपको पता है, आप अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, गलत करते हैं। सिर्फ एक ही चीज तय की जा सकती है, वो क्या है? देयर इज अ वन ग्राउंड, दैट इज अ judicial review। judicial review. That is a power in the hands of the court. That court can take a judicial review if that law is inconsistent with the constitution। part 3rd of the constitution. अच्छा Are you getting my point? 13 Yes, में sir. क्या है? If any law is inconsistent, any law means pre-constitutional law or post-constitutional law, if it is inconsistent with the fundamental rights under part 3rd, then court can take a judicial review, can invalidate that law. To that extent, it is a void. हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें, there is one more article, that is a 361. ये और एग्जीक्यूटिव की बात करता है। 361 में क्या है, एक बार रीड करेंगे प्लीज कोई? What is written in 361, article 361? protection of president and governors and Raj Pramukhs। Yes. The president, पढ़ूं sir? हाँ जी रीड करिए एक बार। The president or the governor or the Raj Pramukh of a state shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers and duties। हाँ जी, इसका क्या मतलब हुआ शशांक? कौन कौन लोग हैं जिनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है, इम्यूनिटी है? एग्जीक्यूटिव के हाईएस्ट ऑफिशियल्स Means president and governor shall not be answerable in any court for the exercise and performance of their duty
और परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफ ड्यूटी ऑफ ऑफिस। इसका मतलब क्या है कि ये एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? अपनी किसी भी काम के लिए। जो एग्जीक्यूटिव है वो भी हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव की बात की गई, जो कौन से हैं? गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, एंड राज प्रमुख इज डिलीटेड आई थिंक। शशांक, Yes, sir. बेयर एक्ट में दे रखा है, इट हैज बीन omitted by the 7th Constitutional Amendment Act Okay. 1956. हाँ, ये 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जहां जहां ब्रिटिश इंडिया था वहां पर शायद ये इंडिया किया गया था। शशांक, ये सर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था 1956 में, उसी के कारण आया था ये शायद। इसमें एक थी 7th जो अमेंडमेंट है, इसमें शायद मुझे लगता है 1956 में है ये, क्यों? यस सर, यस सर। हाँ, 1956 में है। तो 1956 में शायद जहाँ जहाँ पर ये टेरिटरी शायद लिखा हुआ था ब्रिटिश इंडिया, शायद वहाँ पर से इंडिया किया गया है सारी जगह। लेकिन ये तो पहले हो जाना चाहिए था आई थिंक, ऐसा नहीं होगा, फिर दूसरा कुछ है या नहीं? मुझे जो लग रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, हाँ जी, बस मुझे याद आ रहा है, तो वो गलत भी हो सकता है। हाँ जी। वो ये है कि कश्मीर के अंदर पहले राज प्रमुख हुआ करते थे, फिर नहीं, प्राइम राज मिनिस्टर प्रमुख, भी रहे। शशांक दैट इज अ डिफरेंट थिंग। राज प्रमुख तो हटाया ही गया। हाँ बताइए। 1965 में वहाँ प्राइम मिनिस्टर हटे, हाँ। मतलब वहाँ जम्मू एंड कश्मीर के अपने प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे 1965 में। हाँ, तो उसके और उन्हीं को शायद हिंदी में हम राज प्रमुख कहते थे। इस कारण राज ये प्रमुख आई थिंक पता क्या होता है, ये अगर मैं जहां तक समझ रहा हूं, ये एम्बेसडर्स होते हैं। शशांक, राज प्रमुख, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, अब एक बार देखना पड़ेगा, मेरी सॉरी, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा मैंने क्योंकि ये इंडिया में कब थे इसको देखना पड़ेगा, ठीक है? सर मुझे जितना याद है, आई डोंट नो द प्रॉपर मीनिंग ऑफ राज प्रमुख, लेकिन जैसा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, तो इससे पहले स्टेट्स भी थे, दूसरे स्टेट्स बिल्कुल। जिनको लाया गया था इंडिया की टेरिटरी के अंदर, तो मे बी उनके लिए यूज होता हो। ओके, जो प्रोविंशियल स्टेट्स थे, जो प्रांतीय Yes, sir. स्टेट थे, जिनको जोड़ा गया है बाद में, कुछ ऐसे स्टेट जो हैं वो इंक्लूड हुए हैं ना, जो इंक्लूजन स्टेट का हुआ है आपकी टेरिटरी में, आपने देखा है ना कि ये स्टेट इस अमेंडमेंट के जरिए इसको जोड़ दिया गया। आर यू गेटिंग माय Yes, पॉइंट? sir. तो हो सकता है कि उनके जो राज प्रमुख हो, जो उनको डील कर रहे थे, प्रमुख हेड होगा जो उनका, उसका नाम वहां पर उन्होंने रखा है कि उसको भी इम्यूनिटी मिलेगी। के गवर्नर अच्छा, बोला जाता है। अच्छा, यस सर, यस सर। करेक्ट, हाँ समझ गए ना, करेक्ट। वहां पे जो गवर्नर हुआ करते थे वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर नहीं थे, वो क्या थे? ब्रिटिश अपॉइंटेड गवर्नर्स थे ना? यस सर, यस सर, जो Correct. 1956 से पहले था। हाँ, ठीक है, ओके। तो ये कब ओमिट किया गया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाई चांस कभी कभार प्री में ये क्वेश्चन डाल सकते हैं कि कब ओमिट किया गया राज प्रमुख को। 7th अमेंडमेंट 1956, करेक्ट शशांक? नाउ प्रेजेंटली देयर इज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, करेक्ट, ओके। तो ये जो 36, हाँ जी, व्हाई नॉट लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्ड यूज? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को गवर्नर में रीड कर? एक्चुअली शशांक ब्रिटिश अपॉइंटेड गवर्नर और कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको प्रोविजंस मिल रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन अ डिफरेंट मेथडोलॉजी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उनका अपना तरीका था, वो लोग जिस तरीके से रूल कर रहे थे, हमारे यहाँ पर उस तरीके की इन्होंने हायरार्की, अपनी अलग हायरार्की बनाई, बाकी काम सारे वही लिए जा रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, हाँ जी। यूपी के बारे में सोच रहा था, यूनियन टेरिटरीज के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, जो कि गवर्नर नहीं है, क्योंकि अलग आर्टिकल्स, जैसे दिल्ली के लिए बात करें 239A, हाँ वहाँ जी। पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, गवर्नर के डायरेक्ट प्रोविजंस उन पे अप्लाई नहीं होते। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे वही चीज नहीं थी क्या? वो भी तो एक एग्जीक्यूटिव है। नहीं, क्वेश्चन नहीं सर समझ। दिल्ली की तो कोई और ही बात होगी ना, दिल्ली में तो बहुत लेट ये सारे अमेंडमेंट्स आए थे। एक्चुअली इवन दिल्ली दैट को भी स्टेट का दर्जा दिया अभी, शायद हमें लग रहा है कि ये एनसीटी का दर्जा मिला था। वो शशांक को थोड़ा सा अलग कुछ है आई थिंक, जो आप पूछ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उसका मुझे नहीं लगता कि कोई रिलेवेंस अभी है। क्वेश्चन बाद में देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जो बात आई थी वो क्या थी? राजनयिक की बात थी, राजनयिक या राज प्रमुख। ये क्या है? राज प्रमुख जो हैं वो अपॉइंटेड ब्रिटिश अपॉइंटेड गवर्नर्स थे। इन्होंने अपनी कॉलोनी क्या कर दी, इनको इंडिया में इंक्लूड कर दिया, उसके बाद इनको इम्यूनिटी प्राप्त हो गई और इनको कुछ प्रीवी पर्स वगैरह भी दिया जाने लगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इनको कुछ दिया जाता था, इनको इम्यूनिटी भी दी गई कि आपको किसी भी तरीके से आपको किसी कोर्ट में नहीं रखा जाएगा, आपने जो भी गलत किया, सही किया, जो डिसीजन दे दिए हो गए, तो उनके लिए किया गया था इम्यूनिटी। बाद में इसको रिमूव कर दिया गया, क्योंकि क्या हुआ, स्टेट टेरिटरी में आ गए और फुल स्टेट का दर्जा दे दिया गया उन सारे प्रोविंसेस को। हाँ, यहाँ पर बात कर रहे थे हम 361 की, दैट इज अ इम्यूनिटी टू सम हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स।
जो हेड हैं एग्जीक्यूटिव के, उनको कुछ इम्यूनिटी मिली कि इन लोगों को, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, तो ये क्या है, एग्जीक्यूटिव को, और अगर हायर जुडिशरी में देखा जाए या जुडिशरी में देखा जाए तो इनको अलग रखा गया कि ऐसा नहीं कि हम कोई काम कर रहे हैं ज़बरदस्ती, आप बुला रहे हैं हमको, आपने ये कैसे कर दिया, आपने ऑर्डिनेंस कैसे कर दिया, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जो डिसीजन लेंगे ये प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, कोर्ट उनको कोई किसी भी तरीके से ये नहीं पूछ सकती कि आप किस ग्राउंड पर ये डिसीजन ले रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शशांक, शशांक, Yes, I'm getting you. हाँ, ये जनरल है। इसके बाद एक्सेप्शन में किसी को भी बुलाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि पूछा जाएगा आपसे कि आपका क्या मटेरियल फैक्ट है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने कंसीडर किया डिसीजन लेने में, वो डिफरेंट चीज़ आएगी किसी और पर्टिकुलर काम के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमने बात की थी कि प्री इंडिपेंडेंस क्या था? क्रिमिनल मजिस्ट्रेसी जो थी वो क्या थी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेड करता था, और उसको देखा गया कि अब 1950 के बाद अलग कर दिया जाए, ताकि जो आपने देखा ना कि आर्बिट्रेरी, अनरीजनेबलनेस और बहुत सारी चीज़ें, ऑपरेसिवनेस, हर चीज़ वो इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब बात आती है कि किसी भी, अगर म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल ऑफिसर का एक इलस्ट्रेशन मैं डिस्कस कर रहा हूं, इफ एनी म्युनिसिपल ऑफिसर इज अपॉइंटेड फॉर penalizing any person under Municipality Act for non-submission of the fees, non-submission of the duty, non-submission of the levy, and he is a presiding officer to decide the matter, then whether this is constitutional or unconstitutional in terms of 50? Shashank. मैं समझ नहीं पाया, फिर से Question is, A is a municipal officer and he has been charged with power to decide the matter relating to the fees, relating to the fines, relating to the offences under Municipality Act, and to preside the chair. Whether he can preside the chair and he can decide the matter, whether it is a violation or whether it is a in violation of Article 50. क्या ये वायलेशन में, 50 के वायलेशन में है? Sir, I think it is in violation. इट इज एन वायलेशन। मतलब ये क्या है, 50 का वायलेशन है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को काम आप दे रहे हैं जुडिशरी का। क्यों? Yes, sir. नो सर, मुझे नहीं लगता वायलेशन है। और भी कोई अगर ओपिनियन रखता है तो प्लीज बता सकता है। Sir, I think Sir, क्वासी जुडिशियल फंक्शंस तो एग्जीक्यूटिव परफॉर्म कर ही सकता है। हाँ। प्योरली जुडिशियल मैटर जो लाइक प्लीज नोट डाउन, प्लीज एक केस का नाम नोट कर लेंगे, बालचंद वर्सेस मंदसौर म्यूनिसिपैलिटी, AIR 1964। इस पॉइंट पे थोड़ा सा नोट कर लीजिए। बालचंद वर्सेस मंदसौर म्यूनिसिपैलिटी, AIR 1964। कहाँ पर है मंदसौर, कोई बता सकता है? नयन? सर MP में इंदौर के पास है। हाँ जी, नयन, वो अनामिका। हाँ नोट डाउन, ओके। बालचंद वर्सेस मंदसौर म्यूनिसिपैलिटी, AIR 1964, मध्य प्रदेश। म्युनिसिपल ऑफिसर, कोर्ट हेड, म्युनिसिपल ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर trying offenses covering sanitation and impose small fine, covering sanitation and impose small fine is not unconstitutional and does not attract Article 50 of the Constitution. हाँ जी, अब आपने बोला था जो, क्या है ये, इसे क्या नहीं माना जाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा। हाँ, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, उसको किया जा सकता है। लेकिन एक और इलस्ट्रेशन, A is appointed as a additional judge in any high court and some dishonesty, some corruption cases, was revealed against him, and during that period he was appointed as a president of
president of State Consumer Dispute Redressal Commission. Whether this is a constitutional or unconstitutional, कोई एक जज सर है, फैक्ट्स क्लियर नहीं हुआ. there is Sir, a please repeat. A is a judge of A is an additional judge of High Court. Okay, A is an additional judge of High Court and not confirmed permanent judge during that period. During that period, because of dishonesty of that judge, he was not confirmed and he was appointed as a president of State Consumer Dispute Redressal Commission. यानी कि किसी एक एडिशनल जज को अपॉइंट किया गया. जैसे आपने देखा एडिशनल जज कितने दिन के लिए रहेगा, क्या टाइम पीरियड है. अगर किसी को जज बनाया जाता है, जैसे आप देखते हैं ना कि कमीशन का आता है, कॉलेजियम अपॉइंट करती है, तो कितने दिन के लिए एडिशनल जज रहता है वो. नॉट मोर देन 2 years. क्यों शशांक? उसके बाद उसको कंफर्म किया जाएगा परमानेंट जज या फिर हटाएंगे. शशांक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Means if any person is appointed as a judge in high court, तो वो क्या होगा, एडिशनल जज, एंड ही विल बी confirmed within 2 years. नॉट मोर देन 2 year एडिशनल जज नहीं रह सकता. एडिशनल जज 2 साल, उसके बाद उसको परमानेंट करें या हटा दें. ठीक है, तो ये एडिशनल जज था जो अपॉइंट हुआ और इस एडिशनल जज के खिलाफ डिसऑनेस्टी के केसेस आए. हाँ, अब आ रहे हैं, अब बताइए. नहीं सर, आप जैसे बता रहे हैं ना कि एडिशनल जज के बारे में, और शायद ये केस भी आया था कोविड के टाइम जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस दे रही थी कि अगर आपके हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस है, दैट डजंट मीन यू हैव द फुल कोरम और आपको अपॉइंट करना पड़ेगा जो जजेस की वैकेंसी है हाई कोर्ट में. यस, उन्हें परमानेंट कंफर्म किया जाएगा. ठीक है, क्योंकि परमानेंट कंफर्म करने से क्या होगा, आगे वो कहीं पर जा करके अपने को शो कर सकते हैं. जैसे मैं गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक्सपीरियंस नहीं दिखा सकता कहीं पे. मुझे क्या होना चाहिए, एडहॉक या परमानेंट होना पड़ेगा. दिस एक्सपीरियंस विल नॉट बी गिवन वेटेज. दिस वेटेज शुड नॉट बी गिवन टू दैट एक्सपीरियंस. एक तरीके का क्या है, ये प्रोबिशन टाइम या इसको ट्रेनिंग पीरियड रख सकते हैं हम, लेकिन इसका एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा. तो बात आती है कि ये एक जज है जिसको एडिशनल जज अपॉइंट किया गया ड्यूरिंग दैट पीरियड. अभी ये कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन उसी बीच उसके खिलाफ डिसऑनेस्टी के केसेस होना शुरू हुआ और उसको क्या किया, हेड बना दिया. कहाँ पर, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन. एक केस का नाम नोट कर लेंगे, एन कन्नादसन वर्सेस अजॉय खोस. एन कन्नादसन, KANADASAN, एन कन्नादसन वर्सेस अजॉय खोस, AJOY KHOSE, खोस, 2009 SCC. द अपॉइंटमेंट. अच्छा प्लीज, आप लोगों ने फैक्ट नोट किया है क्या अनामिका? No, sir. नहीं नोट किया आपने, प्लीज नोट डाउन. When government had appointed an additional district judge, sorry, not district, additional judge, who had not been confirmed permanent judge, who had not been confirmed permanent judge because of dishonesty, and he was appointed president of State Consumer Dispute Redressal Commission, comma, the Supreme Court held that Sir, kindly repeat the last line. last line is he was appointed president of State Consumer Dispute Redressal Commission, comma, the Supreme Court held that
the Supreme Court held that such an appointment was invalid and it is contrary to Article 50. It is contrary to Article 50 and it interferes with the independence of judiciary. It interferes with the independence of judiciary. हाँ जी, एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज, क्या लिखा है अब आपने? What I have written that A was the additional judge of the High Court, not पूरा केस ऐसे का नाम क्या है? सर केस का नाम है एन कन्नादसन वर्सेस अजय अजय घोष 2009 SCC और इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द अपॉइंटमेंट वाज इनवैलिड एंड इट इंटरफेयर्स सर आपने आभा with लिखा the नहीं, आपने आभा लिखा नहीं है क्या? ये सर लिखा है मैंने, ऐसे कंप्लीटली नहीं लिखा है, रिटन इन पॉइंट्स। अनामिका प्लीज बताइए क्या लिखा है? N. Kannadasan versus Ajoy Ghosh, 2009 SCC, ADJ who have not been conferred नॉट permanent judge. एडीजे नहीं लिखना है यहाँ पर, एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट, नॉट एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएगा एडीजे, ठीक है? Yes, sir. हाँ जी, एडिशनल जज। Additional judge who have not been conferred permanent judge because of dishonesty, and he was appointed president of State Consumer Dispute Resolution. The Supreme Court held that such appointment was invalid and it is contrary to Article 50. It interferes independency of judiciary. ओके, अब हाँ पॉइंट्स भी कम से कम लिखा करो, तो कम से कम ऐसे लिख लिया करो कि आपको दोबारा क्लियर रहें। थोड़ा सा जल्दबाजी करने से अच्छा है कि लिख लिया करो, आगे काम आएंगे। कागज़ पर लिखा रहेगा तो हो सकता है कि कभी पलट लें तो ये मिल जाए, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का आपका प्रोविज़न कंप्लीट हुआ। नाउ प्लीज़ रीड आर्टिकल 51, सॉरी, आर्टिकल 51। वैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अभी हम एक जगह और डिस्कस करेंगे। शशांक, कहाँ पर? शशांक, सर शायद जब सुप्रीम कोर्ट के Yes. आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे तब। बिल्कुल बिल्कुल, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि डिस्कशन हो तो वहाँ पर हम एसपी गुप्ता से और बाकी के जो ट्रांसफ़र जजेस केसेस हैं वो सारे वहाँ पर डिस्कस होंगे। ओके, एनजेएससी और सारी चीज़ें, करेक्ट? यस हाँ, यहाँ पर के लिए इतना ही काफ़ी है। नाउ आर्टिकल 51 प्लीज़। yes sir. 51 is promotion of international peace and security. यस, States shall endeavor to promote international peace and security, maintain just and honorable relations between nations, foster respect for international law and treaty obligation in the dealing of organized peoples with one another, and encourage settlement of international dispute by arbitration. ओके। आफ्टर रीडिंग आर्टिकल 51, पहला पॉइंट क्या है? किस चीज़ का एंडेवर किया जाए? टू प्रमोट, International peace. नोट डाउन प्लीज, इनको पॉइंटर्स में नोट करेंगे। अंडर आर्टिकल 51 ए, सॉरी, अंडर आर्टिकल 51 इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, इट इज़ ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस। नीचे पॉइंटर्स में लिखेंगे आप, सेक्शन जैसा नहीं लिखेंगे, आर्टिकल जैसा पूरा नहीं लिखेंगे। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, सेकेंड नीचे मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, थर्ड foster respect for international law and treaty, foster international respect and law and treaty in dealing of organized peoples and others, in dealing with organization, peoples and others। अगर वो किसी पीपल से भी डील कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन से डील कर रहे हैं या किसी भी व्यक्ति या विशेष से डील कर रहे हैं, इनको ये सारी चीज़ें करनी है। एंड लास्ट इज इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। एक बार प्लीज़ रिपीट करेंगे कि आपको 51 में क्या देखने को मिला, क्या प्रमोट किया जाए? So the state shall endeavor to promote international peace and इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, करेक्ट। एंड
second one is maintain just and honorable relations Yes. between nations. Yes. C is foster respect for international law and treaty obligations in dealing of organized people with one another, ओके and encourage settlement of international disputes by arbitration. ओके, ये चार जो डीपीएसपी आपके, मतलब ये जो आपने एक डीपीएसपी पढ़ा ना 51, थोड़ा सा इसको आप लोग बहुत ही इम्फेसिस कर कर देखेंगे, क्योंकि अब डीपीएसपी के साथ ही वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ डालेंगे। ओके, जब वो पूछते हैं कि विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, तो वहाँ पर ये एक वर्ड है जो आपको खास कर है, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशन, या कुछ ऐसा डालेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये डीपीएसपी है या फंडामेंटल ड्यूटी है, ये करने में, डिफरेंस करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो अब जो बात कर रहे हैं, वैसे तो आपने डीपीएसपी बहुत अच्छे से देख लिया, आपको तुरंत पहचान में आ जाएगा कि ये डीपीएसपी है या नहीं, ठीक है। लेकिन तब भी आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई इंटरनेशनल ट्रीटी इन्फोर्स कराने का कोई प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 253 इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए स्टेट लॉ बना सकता है, डोमेस्टिक लॉ। 253 इसको किसी और नाम से भी जानते हैं क्या, बताइए आभा? नो सर, 253 को किस नाम से जानते हैं? ये डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, शशांक? यस सर, यू कैन से दैट। क्या है ये शशांक? जो इंटरनेशनल लॉ में चीजें उसको म्युनिसिपल लॉ में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं 253 के जरिए, और ये 253 एक इनकॉर्पोरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन वी एक्सेप्ट द इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स, इंटरनेशनल रूल्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, इनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं थ्रू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द लॉ इन द म्यूनिसिपल लॉ, एंड ये इनकॉर्पोरेशन होता है 253 के जरिए। इज इट क्लियर? हाँ, Yes, sir. इसके लिए एक बात कही थी कि अगर म्यूनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में, हाँ आभा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, मान सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे, आपको याद है राइट टू प्राइवेसी, क्यों? वेयर राइट टू प्राइवेसी इज गिवन, अंडर विच ट्रीटी और ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पर दिया गया राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट? यस सर, यूडीएचआर में है, आईसीसीपीआर में है। सेक्शन 17 एंड 12 ऑफ द आईसीसीपीआर एंड यूडीएचआर। क्या है सेक्शन 17 ऑफ आईसीसीपीआर एंड यूडीएचआर? लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। नाउ वी विल सी द रिलेशन बिटवीन एम डोमेस्टिक लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। क्या है? विल डिस्कस द distinction between the domestic law and a municipal law. If there is a domestic law, sorry, if there is a municipal law and international, domestic and municipal तो एक ही चीज़ है, ठीक है? तो क्या है relation between the municipal law and international law? Note down in the case one on the Bharti versus State of Kerala 1973. In the case of Keshwanand Bharti versus State of Kerala, 1973, Justice Sikri observed with regard to Article 51 के बारे में जस्टिस सीकरी ने स्टेटमेंट दिया था, नोट डाउन प्लीज। हाँ, कि इफ देयर इज अ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द इंटरनेशनल लॉ एंड अ म्युनिसिपल लॉ, देन व्हाट पोजीशन शुड बी बेटर फॉर इंडिया। एंड आपने बहुत जगह पर सुना होगा कि वी आर नॉट बाउंड बाय द इंटरनेशनल लॉ, वी आर नॉट बाउंड बाय द कस्टमरी लॉ, वी आर नॉट बाउंड बाय द कॉमन लॉ टू implement that common law in their Indian system, Indian legal system. तो जस्टिस सीकरी ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, in regards to Article 51, they observe this court must interpret language of the Constitution. Please, this court must interpret language of the Constitution, comma, if not intractable, if not intractable, which is after all a municipal law, which is after all a municipal law,
comma, in the light of United Nations Charter and the Solomon Declaration subscribed to by India. अगर आपका कोई इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन में हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन को किया जा रहा है और जहाँ पर म्यूनिसिपल लॉ जो है वो नहीं है उस पॉइंट पे, आफ्टर अ म्यूनिसिपल लॉ, मतलब म्यूनिसिपल लॉ नहीं है वहाँ पर, तो क्या किया जाएगा सृष्टि? सर उसे हम इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं बिना किसी अमेंडमेंट के। हाँ, किन चीज़ों को फॉलो करेंगे? यूनाइटेड नेशंस चार्टर एंड द सोलोमन डिक्लेरेशन सब्सक्राइब टू बाय इंडिया। अगर आपने कोई डिक्लेरेशन साइन किया है, कोई ट्रीटी साइन की है, आप उसको क्या करेंगे? सोलोमनली उसको क्या करेंगे? आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। यस। इसके साथ ही एक और केस है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला। नितिका, हाँ जी। तो यूनाइटेड नेशन के बाद क्या बोला आपने? यूनाइटेड नेशंस चार्टर एंड द सोलोमन डिक्लेरेशन सब्सक्राइब टू बाय इंडिया। हाँ जी। एक माइनॉरिटी ओपिनियन थी एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला में, किसने दी थी वैसे? HR खन्ना ने। HR खन्ना। किसी को पता है ये एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला किस केस में ओवररूल हुआ? सर ओवरऑल तो केस पुटवा स्वामी में हुआ था, लेकिन ओवरटर्न पहले ही 44th अमेंडमेंट से हो गया। मींस एक्ट 44th के जरिए उसको रोक दिया गया, उसके इफेक्ट को, लेकिन जजमेंट ओवररूल किया गया किसी प्रेसिडेंट के जरिए, वो कौन सा है? केस पुटवा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। सन हैज ओवररूल्ड द जजमेंट ऑफ फादर। किसने किया? DY चंद्रचूड़ ओवररूल्ड द जजमेंट ऑफ YV चंद्रचूड़। यस। अब बात कर लेते हैं एडीएम जबलपुर शिवाकांत शुक्ला के माइनॉरिटी ओपिनियन की। थोड़ा सा उसमें जानकारी आपको मिल जाएगी कि बस है, आई थिंक ज़रूरत नहीं है लिखने की, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, माइनॉरिटी ओपिनियन है। और उन्होंने एक ही बात की, क्या बात की है कि जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ का, वहाँ पर किसको प्रिवेल किया जाएगा? म्युनिसिपल लॉ। Municipal law shall prevail, okay, and there must be harmony between the municipal law and the international law. And एक जजमेंट है जो कि PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन का इस्तेमाल किया गया एंड राइट टू प्राइवेसी को एज अ राइट बताने के लिए उन्हें किन प्रोविजंस का इस्तेमाल करना पड़ा? PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997 court referred article 17 of ICCPR and 12 of the UDHR for deriving the right to privacy in India. क्या है सृष्टि? So kindly Yes sir. In the case of PUCL versus Union of India AIR 1997, court referred article 17 of ICCPR and article 12 of UDHR to derive right to privacy in India, to derive right to privacy in India. International law can be incorporated in Indian law if it is not contrary with the municipal law. शशांक, क्या किया जा सकता है? कब इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है? हाँ जी। When it can When be, it is not inconsistent with municipal law. when it is not inconsistent with the municipal law, it can be incorporated in Indian legislation, Indian legislature. ठीक है? तो I think it's clear to all of you and DPSP has been finished आपके। एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा इसके बाद? शशांक, इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मिनिमम 5 बार कम से कम जो आपने कंटेंट लिखा है DPSP का उसको आपको रिवाइज करना है, क्योंकि पता क्या है, आप भूल जाएंगे, और अगर आप भूल गए ना DPSP का कोई प्रोविज़न, तो आपका 1-2 नंबर कम हो जाएगा।
मैं लिख कर देता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम देने चले जाइएगा वहाँ पर आपको ज़रूर प्रोविज़न आएंगे डीपीएसपी से। लोग करते क्या हैं, लोग फर्स्ट रीडिंग मार्क करके चले जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और वहाँ पर क्या हो जाता है, क्या होता है, पढ़ा तो था, देखा तो था, लेकिन याद नहीं आ रहा है। सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो आपने लिखा है ना कंटेंट, ये कंटेंट आप डीपीएसपी का कंटेंट कम से कम 10 बार तो मिनिमम रीड कर ही डालिए। इसको एकदम टिप पर आपके आ जाना चाहिए, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, या फिर articles based on the socialistic principle, article based on the Gandhian principle, article based on the liberalistic principles. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, सृष्टि? sir. और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ऐसे इसको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम आप देंगे और आपको ये याद करना ही पड़ेगा। मीन्स देयर इज़ नो चॉइस कि इससे बच कर निकल जाएं आप। तो आप अगर अभी याद कर लेंगे, क्योंकि अभी ये क्या है, गरम गरम है, तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़े दिन बाद देखेंगे तो आपको ये बोझ लगने लगेगा। सृष्टि, Yes, sir. तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब कभी एग्ज़ाम देने जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप 80% क्वेश्चन कर देंगे सही, और कहेंगे सर ये तो फंडामेंटल ड्यूटी तक ही आया सब कुछ, इसके आगे तो बस खाली प्रोविज़न पूछ रहा था, क्यों। सो आज के लिए आई थिंक इतना ही है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक बार आप लोग याद कर लेंगे अगर हो सके तो, क्योंकि मेरी उम्मीद रहती है कि भारत के हर नागरिक को फंडामेंटल ड्यूटी तो पता ही होनी चाहिए। कल को आपसे इंटरव्यू में अगर किसी ने पूछ दिया, डू यू नो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, कैन यू टेल मी फंडामेंटल ड्यूटीज़। मैंने एक इंटरव्यू दिया था हाई कोर्ट इलाहाबाद में, तो मुझसे पूछा था उन्होंने, रीड द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल रीड करने के लिए आपको बोल देगा, तो आप क्या रीड करेंगे प्रियम्बल, क्यों। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो पूरा प्रियम्बल सुना सकते हैं मुझे अभी, जिनको वर्ड टू वर्ड पता है प्रियम्बल। सर मुझे याद है। याद है आपको, चलिए ठीक है। षष्ठी, आपको याद है। जिन लोगों को नहीं याद है वो लोग प्लीज़, हम बता देते हैं कहाँ तक याद कर लें, जिससे आपकी इज्जत बच जाएगी इंटरव्यू में, क्योंकि मेरी भी ऐसा ही हुआ था। क्योंकि पूरा तो नहीं उस समय में याद था, लेकिन हाँ इतना याद था कि जहाँ पर उन्होंने रोक दिया कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, मतलब आपको इतना प्रियम्बल आना चाहिए जहाँ तक आपका इंटरव्यूअर आपको कह दे इट्स ओके, आगे बताइए, दूसरी चीज़ बताइए। मतलब ऐसा नहीं है वी द पीपल बस रुक गए वहीं पे, उसके आगे कुछ नहीं पता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India's sovereign socialist secular democratic republic to all its citizens, आगे citizen to secure Justice, liberty, equality, justice of क्या, justice पॉलिटिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हाँ ये सारे वर्ड्स बताते हुए, और ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ताकि बाई चांस कभी भी आपकी बेइज्जती ना हो। और फंडामेंटल ड्यूटी, अगर मैं जैसे इंटरव्यू लूँगा अगर बाई चांस कभी किसी से, तो मैं ज़रूर पूछूंगा, हाँ ये बताइए 11 ड्यूटी हैं फंडामेंटल। राइट तो बहुत पता होंगे आपको, जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, सोने का अधिकार, रहने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, बिजली का अधिकार, पता नहीं कौन कौन से अधिकार जनरेट करवा डाले आपने। 11 ड्यूटी आपको याद नहीं हो पाई, क्यों। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर 11 ड्यूटीज़, तो मैं लिख कर देता हूँ कि भारत में ऐसे मेजॉरिटी ऑफ पीपल निकल आएंगे जिनको 11 की 11 ड्यूटी नहीं पता होंगी कि उनकी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है। राइट उनको पता है, और एक आदमी था जिसने कहा था कि देयर इज ओनली वन राइट, दैट इज अ, To perform your duty. कौन था वो, किसने कहा था ये। देयर इज ओनली वन राइट एंड दैट इज to do his duty first. लियोन डेगिट। Yes, sir. Yes, sir. याद आया कृतिका, सर यस। याद आया आप लोगों को। कहा था कि राइट है ही नहीं, हिज आइडिया इज अगेंस्ट द राइट। डेगिट ने क्या कहा, सोशल सॉलिडरिटी, कौन कौन से प्रिंसिपल थे, सोशल सॉलिडरिटी, सोशल कोहेशन, आदमी एक दूसरे के सहारे चलता है, अकेले नहीं, इंटरडिपेंडेंस ऑफ मेन।
Is it clear? Yes, sir. Sasank, am I audible? Yes. Yes, sir. I can आपको hear you. आपको jurisprudence में याद आया या नहीं याद आया ये डिगिट? सर मैंने jurisprudence नहीं किया था आपके अच्छा साथ। अच्छा, सृष्टि आपको तो किया है, आपने, कृतिका ने किया है, बाकी और लोगों ने किया है, शायद इन लोगों को याद आ गया होगा। ठीक है, सर तो इतना याद आया था, डी से नाम था। हाँ हाँ, इट्स ओके, कोई सर बात नहीं। आपने जो बोला वो याद है, जो आपने कहा हाँ डगिट के बारे में लोगों ने पढ़ा था आप ही से। हाँ, तो ये क्या है, यस सर। आपको अगर याद है ना, तो आप आंसर बहुत अच्छा लिख लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब भी फंडामेंटल ड्यूटी लिखने जाएंगे तो ये ज़रूर लिखेंगे, और यही आंसर लिखना है। ठीक है, कल हम बात करेंगे थोड़ी सी कि फंडामेंटल ड्यूटी क्यों है, किस लिए दी गई है, जब ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, जस्टिफिएबल नहीं है, किस लिए हैं ये मॉरल ड्यूटी, सिविक ड्यूटीज़, दीज आर द मॉरल एंड सिविक ड्यूटीज़। मन करे तो मान लो, मन करे तो नहीं मानो। 15 अगस्त को लोग उठते तक नहीं है हमारे देश में, पता है तुमको? मतलब 15 अगस्त को लोग उठते नहीं हैं। इस देश में छुट्टी मनाई जाती है 15 अगस्त को, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। पता है क्या किया जाता है? बड़े बड़े कॉलेजेस बंद कर दिए जाते हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो छुट्टी रहती है 15 अगस्त के दिन। 5 साल से मैंने कभी जामिया में 15 अगस्त पे मतलब नहीं गया हूँ। मतलब क्या है ये क्या है ये? मतलब जिस देश में 15 अगस्त के दिन देश आज़ाद हुआ है, उस दिन खुशहाली होनी चाहिए, तो खुशहाली में बच्चों को कॉलेज आना चाहिए ना, आकर के प्रोग्राम करें, खुशियाँ मनाएं। लेकिन यहाँ क्या है, घर पे एंजॉयमेंट करिए आप, मतलब छुट्टी कर दीजिए। हमारे यहाँ देश में जब कभी एंजॉयमेंट होता है तो उसका मतलब होता है छुट्टी करो पहले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इट्स ओके, बट